مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آپ کو بھی سلام۔ ہم شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے کہ خداوند نے یہ خوبصورت دن ہمیں بخشا کہ ہم اس کے گھر میں آئیں اور اس کی عبادت کریں۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق یہاں پر موجود ہے اور اس کی موجودگی کا ہم شکر کرتے ہیں۔ آئیے مل کے ہم خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کرتے ہیں تالی بجا کر۔ بڑے ہی خوش قسمت ہے کہ خداوند نے ہمیں چنا ہے، ہم نے نہیں بلکہ خداوند نے ہمیں چنا ہے۔ ہم مسیح ہیں، اس کا ہمیں فخر کرنا چاہیے، کیونکہ مسیح ہونا ایک فخر کی علامت ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو ہم اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں کہ اس نے ہماری خاطر ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے سولی پر جان دی، اس نے مار کھائی، کوڑے کھائے اور اپنا جو بدن ہے وہ جلانے کے لیے دیا۔ یہ ہمیں اس کا بہت ہی ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، اور آج ہم اس جگہ پر ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اس کی طرف رجوع لائیں۔ آئیے ہم آج کی عبادت کو خداوند کے حضور میں رکھتے ہیں اور خداوند سے ہم یہ التجا کریں گے کہ خداوند اس عبادت کو تو اپنے حضور میں مقبول ٹھہرنے دے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ اے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے کہ تو نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم تیرے گھر میں آئیں اور تیری پرستش کریں۔ خداوند ابھی ایسا وقت ہے خداوند کہ خداوند ہم تیرے حضور میں آئے ہیں، تو ہماری ان دعاؤں کو، ہماری اس پریز اور ورشپ کو، اور پیارے باسمانی خاص طور پر اس کلام کو جو ہم سننے کو ہیں تیرے بندہ کے وسیلہ سے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارے ذہنوں میں اس کلام کو نقش کر ہمیں عقل، دانائی اور فہم دے، تاکہ ہم جو مکاشفہ جو اس کے بھید ہیں اس کو سمجھ سکے۔ تو اپنا پاک روح ہم پر نازل کر۔ پیارے خداوند خاص طور پہ دعا کرتا ہوں پاسٹر جوش کے لیے، اس کے ساتھ ہو پیارے باسمانی، اس کی زبان کا ذمہ لے، جب وہ تیرے کلام کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو پیارے باسمانی ہم اس سے 100 گنا پھل لائیں اور اپنی زندگیوں میں اسے اس کا نمونہ بنائیں، اور پیارے باسمانی اس کلام کو نہ صرف اپنے تک محدود رکھیں بلکہ دوسروں سے بھی اس کلام کو ہم شیئر کریں۔ خاص طور پہ میں دعا کرتا ہوں جتنے یہاں پر موجود ہیں اور جتنے پیارے باسمانی رستہ میں یہاں پر آنے کے لیے تقدو میں ہیں، پیارے باسمانی تو ان کے سفر کو یہاں تک مبارک کر۔ پیارے باسمانی جب وہ یہاں پر آئیں تو ہم ایک جماعت ہو کر، ایک فیملی کے طور پر ہم تجھے مبارک کہہ سکیں اور تیری تمجید کر سکیں۔ پیارے باسمانی خاص طور پہ میں دعا کرتا ہوں اس کلیسیا کے لیے، ایک ایک خاندان کے لیے، پیارے باسمانی تو بڑی برکت دے، تو ان کو پیارے باسمانی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ پیارے باسمانی تو اپنے لائی خزانے سے ان کو بھر دے پیارے باسمانی، اور پیارے باسمانی شروع سے لے کر آخر تک اس عبادت کو تو پیارے باسمانی قبول فرما، تیرا پیارا اور جلالی نام لے کے مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے اب ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ جماعت سے میں درخواست کروں گا کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور ہم مل کر رسولوں کا عقیدہ پڑھیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدائے قادر باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتیس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم رواں میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدائے قادر باپ کی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وجودوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کی جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ تشریف رکھیں۔ ابھی ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے تلاوت سنیں گے، اور یہ تلاوت ہمارے لیے بھائی شکیل کریں گے۔ میں بھائی شکیل کو کہوں گا پلیز وہ اسٹیج پر آئیں، جو آج کا حوالہ ہے ہمارے۔
का हवाला मुकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब 18 आयत से 29 आयत तक है। यहाँ पे यूँ मरकूम है, और थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानंद और पाँव खालिस पीतल की मानंद है, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत, ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज़्यादा हैं, और मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत इज़बेल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ ज़िना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा, और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों को जांचने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुवाफिक बदला दूंगा। मगर तुम थवातीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं नावाकिफ हो, ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रखो। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुवाफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे उम्मों पर इख्तियार दूंगा, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा। जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। This is the word of God. आइए हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। आइए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदावंद कैसे प्रस्ताव ढूंढता है? जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करेंगे। आइए जोरदार तालियों के साथ करेंगे, और सारे अपने साज और आवाज के साथ खुदावंद को आज हम मुबारक कहेंगे। मैं दरखास्त करूंगा अगर हम खड़े हो जाएं तो खड़े होकर खुदावंद की तारीफ करेंगे। आमीन। हम ज़बूर नंबर गाएंगे 80, पेज 50। हेलो। आपे उपरो हथ बना के मैनू राग बचावेगा। आपे उपरो हथ बना के मैनू राग बचावेगा। ओ डूंगे पानी चो
आगे बढ़ा के मेरा बचा देगा। गीत नंबर गाएंगे 369। गीत नंबर 369, पेज 429, पेज नंबर 429। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल का साथ
शुक्र हो इस खूबसूरत प्रेज ऑफ वर्शिप के लिए। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे। वो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। आइए हम खुदावंद को तारीफ करेंगे उसकी, और उसकी मदद भी अभी हमने की है। आइए अब हम उसके आगे अपनी दरख्वास्तें, अपनी जो मुनाजातें हैं वो हम रखेंगे। हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, और जिनको किसी किस्म की भी ज़रूरत है कि हम आज उसके लिए दुआ करें, आइए खुदावंद का पाक रूह यहाँ पर मौजूद है, वो आज हमारी दुआओं का जवाब देगा। इस कलीसिया में बहुत से मौजे हुए हैं, हम उसका शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारे साथ रहता है और वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलके दुआ करेंगे। आज कोई भी जुबान बंद ना रहे। आज खुदावंद का पाक रूह यहाँ पर मौजूद होगा, वो आपकी सारी दुआओं को आज जवाब देगा। आज कोई भी खाली हाथ यहाँ पर से नहीं आमीन, जाएगा। आमीन। आइए मैं दुआस करता हूँ अपनी बहन कमल से कि वो बीमारों के लिए दुआ करे, और तमाम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं अपने पाँव पर खड़े हो जाए, और यहाँ पर आज खुदावंद का पाक रूह काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आबिद भाई, सिस्टर निशाबा आ जाए, सिस्टर दुआ करी होंगी। हम कलीसिया में घूमकर सबके लिए दुआ करेंगे। हाथ रख के दुआ करेंगे। आमीन। चीज़ पूछ है कि आपके साथ कौन खड़ा है, आपके दाईं तरफ कौन खड़ा है। हालेलुया, के लिए इस जिंदगी और जिंदगी की बेशुमार नेमतों के लिए, तो जो प्यार करने वाला जिंदा खुदावंद है और अपने वादों के मुताबिक आज हम सबों के बीच में मौजूद है। यीशु नासरी, तू जो अपने वादों का सच्चा और बेकौल का पक्का खुदावंद है, सबों को अपने पाक करों में छुपा के रखना। जैसे खुदावंद तुझे वादों में उन्हें अपने पाक करों में छुपा के रखा, ऐसे ही है खुदावंद तू इस वक्त में जो मौजूदा वक्त में है, हमें खुदावंद जो जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदावंद उसने भी तेरा पाक लहू, तेरा शक्कर भरा हाथ अपने ऊपर मांगते हैं। और ऐ खुदावंद आने वाले वक्तों में भी है खुदावंद तेरे पाक लहू को हम सबों के ऊपर मांग लेते हैं। खुदावंद हम सबों को अपने पाक लहू में छुपा। तू जो जिंदा खुदावंद है, तू जो अज़ल से अबद तक यकसा है। ऐ खुदावंद जब हम इस दुनिया में नहीं थे तब भी तू था, और आज भी है, और जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तब भी तू ही रहेगा, क्योंकि तू आज और कल यकसा है। तू अज़ल से अबद तक यकसा है। यहोवा यरीह, तो अपना रहम फरमा, अपना फज़ल कर यीशु। ऐ मेरे खुदावंद यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं हम सबों को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। जो है खुदावंद खुदा हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, सबों को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। अपना रहम करना और अपना भारी फज़ल करना खुदावंद, सबकी इल्तिजाओं को दरखास्तों को मैं तेरे पाक दर पे लाती हूँ। ऐ खुदावंद जब भी तू अपने वादों के मुताबिक हमारे बीच में मौजूद है, ऐ खुदावंद खुदा जिसके दिल की दरख्वास्तें हैं खुदावंद, जो तेरी रसूली में सच चुके हैं खुदावंद, सबों को अपने पाक लहू में है खुदावंद कबूल फरमा। अपना रहम करते और अपना भारी फज़ल कर दे यहोवा यरीह। ऐ खुदावंद कोई भी यहाँ से खाली हाथ न जाए, जो इल्तिजाएं लेके खाली झोलियाँ लेके आए हैं, हमें खुदावंद अपनी झोलियों को भर भर के जाए यहोवा यरीह। तो रहम कर दे, अपना फज़ल कर दे। जो बीमार है खुदावंद, और जो है खुदावंद तंदुरुस्ती पाक है तेरे घर में आए हैं खुदावंद, सबों को लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। और है खुदावंद जो बीमार है या किसी भी वजह से चर्च में नहीं आ पाए, आज की भी इस इबादत में शरीक नहीं हो पाया खुदावंद, उनकी राह में सारी रुकावटों को खत्म कर, उनको शिफा दे, रहम कर और अपना फज़ल कर यहोवा यरीह। ऐ मेरे खुदावंद, तू है खुदावंद खुदा हम सबों को अपने पाक करों में छुपा। जिन्होंने अपने प्यारों को ऐ खुदावंद अप्लाई किया हुआ है, उनके इमिग्रेशन के सारे प्रोसेसेस को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं खुदावंद। सारी रुकावटों को, सारे बंधनों को, सारे जुम्मों को तोड़ने की कुव्वत और कुदरत रखता है। ऐ खुदावंद तू अपने बातों का सच्चा और का पक्का खुदावंद है। ऐ खुदावंद तू कय्यूम खुदा है, तू और मेरा का खुदा है। ऐ खुदावंद तेरी कब्र खाली है और तू हमारा जिंदा खुदावंद है। हम जिंदा खुदावंद को मारने वाले खुदावंद है, इंसान है खुदावंद। हम तेरे बेटे क्या है खुदावंद खुदा, पाकिस्तान की
मुताबिक जगह जगह पे खुदा ने क्या क्या चल के अपने वादों के मुताबिक खुदा की इबादत कर रही हो भैया खुदा के जो से बड़ा है वो तेरे पापों में छुपाते कारोबार में बेदानी में पैसे में इकराम में बरकत मांगते हैं इस दाव से भी उस दाव से तेरा शब्द और इबादत के शुरू से क्या है आगे हमेशा बना तशरीफ रखें। Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए हम आगे खुदाम के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। हम अपने खुदाम यीशु मसीह का जो जिंदा कलाम है वो अपने खादम के जरिए हमारे साथ करने को है। मैं दावत दूंगा पास्टर जॉर्ज भाई को कि वो आए, जो आज का वो मुकाशवा है वो हमारे सामने आज बोले कि खुदा हमारे ज़हनों में इस मुकाशवा को आशीर्वाद करे, हम इसके कलाम को समझें और अपनी ज़िंदगियां उसके मुताबिक गुजारें। पास्टर जॉर्ज, थैंक यू जीसस। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Wow. You do feel the presence of Holy Spirit. आमीन। जोर से बोले आमीन। Amen. आमीन। पाक रूह तेरा शुक्र हो, ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। आज वाईफाई काम नहीं कर रहा, लेकिन इट्स ओके। खुदा के साथ जो वाईफाई का कनेक्शन है वो उसी तरह है। आमीन। वो कनेक्शन कभी नहीं टूटता। जब हम ईमान में होते हैं, उसके साथ होते हैं, that connection remains always strong. आमीन। हालेलुया। हमने भी खुदावंद के जिंदा कलाम में तो तीरा की जो कलीसिया है उसके बारे में पढ़ा, और ये अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आप निकाल लें। मकाशवा की किताब उसका 2 बाब, और ये जो खत का मजमून है ये 18वीं आयत से बाब के आखिर तक है। 2 चंद आयत पढ़ी गई हैं, इसकी अभी तिलावत हुई है। And if you were not here, then you can open your Bible, Revelation chapter 2. We read from verse 18 to 29. लेकिन मैं जो मरकजी आयत है उसको पढ़ूंगा, लेकिन हम जो ये मजमून है जो इस चर्च को लिखा गया इसके बारे में आज सीखेंगे। मेरे साथ जो 26वीं आयत है वो निकालें, मकाशवा की किताब और उसके 2 बाब की 26वीं आयत। यहां यूं लिखा, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। आमीन। इस शहर के बारे में थोड़ी सी जल्दी से बात करते हैं, फिर हम खुदावंद के कलाम में डाइव करेंगे। ये जो शहर है हिस्टोरिकली ये एक्चुअली दूसरे जो शहर थे जहां बाकी 6 कलीसियां थी, ये उनके मुकाबले में छोटा शहर था, लेकिन इसकी बड़ी अहमियत थी। ज्योग्राफिकली ये इस तरह सैचुरेटेड था कि उस वक्त, जैसा कि लास्ट टाइम हमने सीखा, परगमन की कलीसिया का जो एरिया था, मतलब वो जो शहर था, वो इस तरह था कि वो दारुल हुकूमत था उस वक्त।
اور ایشیا کو چکر دارالخلافہ تھا رومن گورنمنٹ کے لیے, اور اس تک پہنچنے کے لیے اس شہر سے گزرنا پڑتا تھا. اس لیے یہ جو شہر ہے جہاں پہ یہ کلیسیا جس کا ذکر یہاں پہ ہے, یہ بہت دفعہ تباہ ہوا اور پھر آباد ہوا, کیونکہ جب بھی باہر سے دشمن حملہ کرتے تھے تو وہ اس میں سے گزرتے تھے. تو لہذا یہ ایک طرح کا پہلا ڈیفنس پوسٹ تھی کیپٹل تک جانے کے لیے. اور یہ جو شہر ہے بہت چھوٹا تھا لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ شہر جو ہے, یہ جو کپڑے ہیں, کپڑوں کا جو کاروبار ہے ٹیکسٹائل کا, اس کے لیے مشہور تھا, اور اس کے کپڑے بڑے مشہور تھے اور کلرز بھی بڑے مشہور تھے. اور یہ جو شہر ہے یہاں پر جو بزنس مین تھے وہ بڑے یونائٹ تھے, آپس میں ان کا بڑا اتحاد تھا. اور یہاں پر ہمیں ہسٹوریکلی پتہ چلتا ہے پڑھنے سے کہ جو لیبر یونینز جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں, سنتے ہیں, وہاں پر لیبر یونینز تھی. اور وہ جو یونینز تھی, وہ جو تاجر تھے, ہم اکثر یہ لفظ سنتے ہیں, ہمارے کام جو ہے اس سے واقف ہے, تاجر برادری اکثر سنتے ہیں. اور وہ کرتے کیا, زیادہ تر وہ جب ہڑتال کرتے ہیں لکھا ہوتا ہے تاجر برادری نے ہڑتال کی. یہ جو تاجر تھے, یہ جو بزنس مین تھے, یہ بڑے یونائٹڈ تھے, وہ بڑے پاورفل تھے, اور یہ اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے, پروفٹ لینے کے لیے, منافع کمانے کے لیے ہر طرح کا جائز اور ناجائز جو حربہ ہے وہ استعمال کرتے تھے. اور آپس میں مضبوط تعلقات کی وجہ سے, ان میں یونٹی کی وجہ سے, وہ جو گورنمنٹ تھی, جو سول گورنمنٹ تھی, اس پر بڑا انفلوئنس رکھتے تھے, بڑا اثر تھا. تقریباً ہر جگہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ اس بات سے واقف ہے کہ جو اکانومی ہے, ایک مضبوط اکانومی جو ہے, وہ ان کی جو کرسی یا سیٹ ہے, جو پاور اور اتھارٹی ہے, اس کو قائم رکھنے میں پہلا جو آپ کہہ لیں جو امپورٹنٹ ایریا ہے کسی بھی حکومت کی کامیابی کے لیے, وہ یہ ہے کہ اگر اکانومی مضبوط ہوگی تو لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم ان دنوں اس کا ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں. یہ جو شہر ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا اعمال کی کتاب میں بھی پتہ چلتا ہے. اس کے بارے میں اعمال کی کتاب میں وہاں پر لکھا ہوا ہے, اعمال 16, 14, 15 میں ہم لدیا نام کی ایک عورت کے بارے میں پڑھتے ہیں جو تھیوتیرا کی رہنے والی تھی, اور وہ کپڑے کا بزنس کرتی تھی. اور مورخ یا اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جب اس نے پالوس کی باتیں سنی, جب اس نے مسیح کو قبول کیا, اس کے پورے گھرانے نے مسیح کو قبول کیا, این ممکن ہے کہ یہی واپس گئی اور وہاں پر اس نے مسیح کے اس خوشخبری کے پیغام کو شیئر کیا. یہ ایک تھیوری. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو شہر ہے, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں پڑھنے سے, کہ یہ بہت دفعہ تباہ بھی ہوا, لیکن ہر دفعہ یہ پھر واپس ڈیولپ ہوتا ہے. اور جو لوگ تھے, جس طرح کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, اکنامکلی اسٹرانگ تھے, تو اس وجہ سے ان کے پاس ایسے وسائل بھی تھے کہ وہ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے تھے. آئے اپنے سروں کو جھکائیں اور پھر ہم خداوند کے کلام میں آیت بائے آیت دیکھتے ہیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دیا. اب آپ اس جگہ ہم تیرے وعدے کے مطابق, اور خداوند ہم اس فضا کو محسوس کرتے ہوئے جانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ تو یہاں موجود ہے, اور تیرا پاک روح خداوند اس وقت کثرت کے ساتھ ہم سے بات کر رہا ہے. اے خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے کلام میں سے جو آج سیکھنے کو ہے وہ ہم اپنی عقل, اپنی سمجھ سے نہیں, بلکہ اے پاک روح تیری رہنمائی اور تیری مدد سے سیکھیں, کھولیں, سمجھیں, اور خداوند اس پر عمل کریں. تیرے نام میں مانگتے ہیں, آمین. جب ہم اس کلیسیا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے, تو تیرا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ,
کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یہ فرماتا ہے۔ اگر آپ غور کریں افسس کی کلیسیا کے بارے میں ہم نے سیکھا، اور اس کے بعد ہم نے جو سمرنا کی کلیسیا ہے اس کے بارے میں پڑھا، اور پرگمنس کی کلیسیا جو ہے اس کے بارے میں، اور اگر آپ غور کریں تو ہر دفعہ خداوند نے اپنا جو ٹائٹل ہے، جو اس کے ٹائٹل ہے، اس نے استعمال کیے ہیں انٹروڈکشن کے لیے۔ افسس کی کلیسیا میں وہ کہتا ہے شروع میں، جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ اور پھر اگر ہم سمرنا کی کلیسیا کے مضمون کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، جو اول و آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ اور پھر جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، وہ فرماتا ہے۔ اور اب یہاں پر اس کلیسیا میں اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہے، یہ فرماتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنا جو ٹائٹل ہے اسے استعمال کرتے ہیں، انٹروڈکشن جو ہے وہ دیتے ہیں۔ یہاں پر اس حصے میں جب خداوند فرماتے ہیں خدا کا بیٹا، تو یہ جو نقاد ہے ان کے لیے بڑا ہی آسان کر دیا گیا ہے۔ یسوع مسیح خود کہتے ہیں جو خدا کا بیٹا، بہت دفعہ کہتے ہیں کہ اس نے خود تو نہیں کہا، یہاں پر لکھا ہوا جو خدا کا بیٹا، شاید وہ ان آیات کو نہیں پڑھتے، وہیں پہ تھک جاتے ہیں، مکاشفہ تک وہ لوگ جاتے نہیں۔ یہاں پر جب خداوند نے یہ کہا تو یہ اس کی ڈیوینٹی ہے، وہ یہاں پر اپنی جو اتھارٹی ہے تثلیث کے دوسرے رکن کی حیثیت سے اس کو خداوند بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اپنا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی قدرت اور اپنی طاقت جو ہے اس کا یسوع اظہار کرتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو یہودی ہیں، اگر کوئی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے تو وہ اس بات سے پریشان ہوتا ہے، کیونکہ ان کے لیے ممکن نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہے۔ لہذا جب یسوع نے یہ کہا تو اس نے اور زیادہ کلیئر کر دیا، اور جب کوئی اپنے آپ کو کسی سے منسوب کرتا ہے تو قدرتی طور پر اس شخصیت کی خوبیاں جو ہیں اس میں نظر آتی ہیں اور نظر آنی چاہیے۔ اور آپ نے اکثر یہ لفظ سنا ہے کہ جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں شیطان کے فرزند، تو اس کا مطلب ہے شیطان جیسی حرکتیں اس کو جو فالو کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف جب خدا مجھے اور آپ کو بیٹا اور بیٹی کہتا ہے تو پھر ہم کیا روحانی طور پر اس کی اولاد ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یہاں پر جب خدا یسوع مسیح اپنے آپ کے لیے بیٹے کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں تو وہ تثلیث کے دوسرے رکن کی حیثیت سے، اور یہاں پر اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور آیت کے حوالہ ریفرنس سے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے یسایہ کی کتاب اس کے 57 باب کی 3 آیت۔ یسایہ 57 باب اس کی 3 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، لیکن تم اے جادو گرنی کے بیٹوں، زانی اور فاشا کے بچوں، ادھر آگے آؤ۔ جب یہ کہا گیا تو جو جادوگرنی ہے اس کی جو اولاد ہے وہ اسی کی طرح ہوگی، اور ہمیں پتہ ہے یہ ریفرنس جو ہے سیدھا سیدھا شیطان کے لیے ہے، کیونکہ وہی گناہ اور نافرمانی اور حرام کاری اور جادو ٹونا، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ اسی کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں۔ تو جب ایک یہاں پر ہم نے جو آیت پڑھی، اگر جادوگرنی کی جو اولاد ہے اس میں اس کی خوبیاں ہیں، تو بالکل یہاں پر جو خدا کا بیٹا ہے اس میں خدا کی خوبیاں، کیونکہ وہ اس سے منسوب ہے، وہ اپنی ڈیوینٹی
का इजहार करता है यहाँ पे। कुदरत और ताकत जो है उसके बारे में बताता है, वो बाप के बराबर है। और फिर वो कहता है आग के शोला की मानत, जिसकी आंखें आग के शोला की मानत है। खुदावंद यीशु मसीह ने प्रकाशवाक्य की किताब के शुरू में, प्रेजेंटेशन में आप कह सकते हैं, अपने तारफ में इसका इस्तेमाल किया है। पहले बाब में 14वीं आयत में आग के शोला से मुराद उसकी आंखों की तपश है, और ये रेफरेंस है उसकी जजमेंट के बारे में। उसकी जो जजमेंट है, जिस तरह आग प्योर करती है, इस तरह उसकी जो आंखें हैं वो हमारा एक्सरा करती हैं और हमारे बारे में जानता है। और वो किसी तक की तरफदारी नहीं करता, वो उसी तपश के साथ, उसी आंखों की जो तपिश है, उसकी जो रोशनी है, उससे हमें प्योरीफाई करता है, और अदालत के दिन किसी की तरफदारी नहीं होगी। वो एक सच्चा और आदल जज है। और जब आगे देखते हैं तो लिखा है और पांव खालस पीतल की मानत। पीतल एक ऐसी धात है जो बड़ी मजबूत होती है, और अगर इसे और ज्यादा आग में तपाया जाए तो कहा जाता है कि ये मजबूत तरीन धात बन जाती है। यहां पर इसको मुख्तलिफ रेफरेंस के हम पुराने आयतनामा में भी दूसरे लोगों के लिए देखते हैं, लेकिन यहां पर यीशु की शख्सियत के बारे में है कि वो कुदरत ताकत के साथ पावरफुल शख्सियत, और उसको सवाल नहीं, हमेशा कायम रहने की। अपना तारफ करवाने के बाद फिर यीशु अब आगे बढ़ते हैं, और जो कलीसिया है इसका एक्सरे करते हैं, एग्जामिन करते हैं, हम ये कह सकते हैं। और ये 19वीं आयत में, मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा है। अब खुदावंद यीशु मसीह ये जो ईमानदार हैं यहां इस कलीसिया में, उनको उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे हैं एक्चुअली, कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। और फिर आगे मोहब्बत, ईमान और खिदमत और सब्र, हम देखते हैं कि खुदावंद ने ये कहा। जब हम ईमान की बात देखते हैं, जब यीशु ने लफ्ज ये इस्तेमाल किया, तो खुदावंद बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो दुख और मुसीबत की घड़ी तुझ पर आई, या मुश्किल और आजमाइश का वक्त आया है, तो उसमें ईमान में कायम रहा है। और ये जो कलीसिया है एक्चुअली, और चंद और हैं, और स्पेशली जो पिछली जो हमने कलीसिया के बारे में सीखा, ये जो कलीसिया है इस पर इस तरह का इतना जुल्म नहीं था, लेकिन जुल्म या मुसीबत का जो स्टाइल था या जो तरीके का था वो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन फिर भी उसकी शिद्दत वैसी नहीं थी। लेकिन ईमान में कुछ लोग बरगश्ता हो गए थे, और उनके बारे में खुदावंद कहते हैं जो ईमान में कायम रहे, कि तू अपने दुख की घड़ी में भी अपने ईमान पर मजबूती के साथ कायम रहा। तू जुल्म और मुसीबत बर्दाश्त करता है, और सब्र के साथ ईमान पर कायम, सब्र करते हुए। नए अहदनामा में अगर आप देखें तो ईमान के बारे में बहुत सारे रेफरेंस हैं, बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन ये जो कलीसिया है मेरे अजीजों, यहां पर दो ग्रुप थे, और ये उस ग्रुप के बारे में है जो सब कुछ देखते, सब कुछ जानते हुए, हर तरह का जुल्म और मुसीबतें और डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त करते हुए भी अपने ईमान में कायम रहे। और जो मोहब्बत है, जब खुदावन ये कहते हैं कि दो बातें वहां हो रही थी इस कलीसिया में। इस कलीसिया में दो बातें थी। एक तो लोग खुदा के साथ मोहब्बत करते थे, मोहब्बत में थे, खुदा के साथ प्यार और उल्फत में थे, और उसके साथ साथ वो आपस में भी, कलीसिया जो थी एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत में थी। वहां पर एक ही चर्च था, लोगों के पास ऑप्शन नहीं थी, they were stuck with that church। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं और आप भी इसी तरह जब खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, प्योर खुदा के साथ ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो फिर ये मुमकिन नहीं कि हम खुदा के लोगों के साथ ईमानदारी के साथ चलें, मुमकिन नहीं।
क्योंकि रूहानी तौर पर आपका जो करैक्टर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो इस तरह डेवलप हो जाती है, आप खुद बहुत इस अगापे मोहब्बत में आगे बढ़ते रहते हैं। और यहां पर ये लोग, ये जो कलीसिया थी, ये ऐसी थी, ये एक दूसरे का ख्याल रखते थे, दुख और सुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते थे, मुश्किल में एक दूसरे के साथ थे। इसलिए खुदावंद कहते हैं कि तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत, ये कलीसिया एक दूसरे का ख्याल भी करती थी मेरे से, हर तरह के हालात में एक दूसरे के साथ ये कलीसिया खड़ी थी। इसलिए ये वो काम है, प्रैक्टिकली यही काम होते हैं। मसीह के साथ हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम चर्च आते हैं, लेकिन दुनियावी तौर पर जो प्रैक्टिकली जो लव है, जो सब्र है, जो ईमान है, उसका इजहार किस तरह हम करते हैं इस दुनिया में रहते हुए। खुदा के लोगों के साथ जो हमारा मेल मिलाप और मोहब्बत है, ये प्रैक्टिकली नमूना है, ये अमली नमूना है। दैट इज ये गवाही है, इस टेस्टिमनी जो लोग देखते हैं। yes. और इस कलीसिया में ऐसे था मेरे से। और फिर ये सारी अच्छी रिपोर्ट देने के बाद खुदावंद जो 20वीं आयत है, 19वीं आयत का दूसरा हिस्सा यहां पर लिखा है, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं। अब ये यहां पे जो बात की गई है, ये दो तरह से हो रही थी। वो लोग जो खुदावंद में बढ़ रहे थे, आगे कायम थे, ये उनके कामों के लिए भी है, और इसके साथ साथ वो दूसरा जो ग्रुप था जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, यहां एक एजबेल नाम लिखा हुआ है औरत का, उसके बारे में बात करते तो फिर हमें समझ आएगी कि ये दूसरा जो ग्रुप है वो भी अपने कामों में आगे बढ़ रहा था। वो यीशु को पसंद है। दोनों तरह तरक्की लोग कर सकते हैं, अच्छे कामों में भी तरक्की कर सकते हैं और बुरे कामों में भी। हमने देखा ही है, आजकल लोग कहते हैं यार शैतान का बहुत जोर है। शैतान का शुरू से जोर था, मैं और आप इस दौर में रहते इसलिए हम इसे फिटनेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो भी प्रोग्रेस में है। यहां पर हम देखते हैं कि लिखा है 20वीं आयत में, पर मुझे तुझसे ये शिकायत है। ऊपर प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के बाद ये खुदावंद ने ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये जो बातें की मेरे से याद रखी, ये सिर्फ इस कलीसिया के लिए नहीं थी, ये आज मेरे लिए, इस कलीसिया के लिए और आलमगीर कलीसिया के लिए। खुदा का कलाम हर दौर में ईमानदारों से बात करता है। ये आज मेरी और आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी खुदा देख रहा है और दे रहा है। और फिर क्या लिखा है, पर मुझे तुझसे ये शिकायत है। अब खुदावंद कह रहे हैं कि मुझे तुझसे ये शिकायत है। सब कुछ ठीक है ऊपर जो कहा है, शिकायत क्या है कि तूने उस औरत एजेबेल को रहने दिया जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। खुदावंद ने उसे नबिया नहीं कहा, बल्कि वो अपने आप को कहती है। और मोस्ट लाइकली ये उसका असली नाम नहीं होगा, क्योंकि और खासकर यहूदी कल्चर में कौन एजेबेल नाम रखेगा। कभी आपने सुना किसी ने अपने बच्चे का नाम, एटलीस्ट मैंने नहीं सुना किसी ने अपने बच्चे का नाम हिटलर रखा हो। हिटलर जो नाम है वो एक शख्स का था, लेकिन उसने जो किया, उसकी जिंदगी जैसी गुजरी, उसने जो काम किए, उससे लोगों ने क्या किया, उससे नफरत की, उसने बहुत जुल्म उठाया खुदा के लोगों पर। और आज मिसाल दी जाती, वो तो बिल्कुल हिटलर है। क्यों? वो शख्स का नाम हिटलर तो नहीं है, उसका नाम तो कोई भी हो सकता है, यू नो, एनी नेम। यस, वो कैरेक्टर की बात है। इसी तरह मुमकिन है इस औरत का नाम हो और हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो ये नाम रखेंगे, लेकिन उसको एजेबेल के साथ रिलेट किया। हम अच्छी तरह जानते हैं, कलाम मुकद्दस में आप पढ़ सकते हैं, दूसरे सलातीन में, वहां पर आप जो एजेबेल का जो आखिरी वक्त था उसके साथ क्या हुआ और किस तरह बड़ी ही अजीब तरह से उसकी मौत हुआ, क्या हुई। क्या आप उसको अगर पढ़ें तो यानी कि हम सोचते हैं कि वो शख्स जो खुदा के नबियों को, ये जो औरत थी कत्ल करती थी, ये खुदा के अगेंस्ट काम करती थी,
اور سب سے بڑا اس نے جو کام کیا, اس نے دراصل جو حرام کاری ہے, جو فحاشی, زناکاری, ہر طرح کے جو گناہ ہے, یہاں پہ اڈلٹری, یہاں پہ زناکاری ہے, لیکن ایکچوئل جو متن ہے اس میں جو اڈلٹری ہے وہ ہے بتوں کی قربانی. بتوں کی جو قربانی تھی اس کو کھانا, اس میں شامل ہونا, اس کی پریکٹس کرنا اور اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا, یہ سارے کام یہ عورت کرتی تھی. اس نے کیا کیا, اس نے جو جھوٹی اور فالس ٹیچنگ ہے اس کو اس نے چرچ کی ڈاکٹرن, چرچ کی جو ٹیچنگ ہے اس کے ساتھ مکس کر دیا تھا. پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ باہر سے جب بھی کوئی حملہ کرے گا کلیسیا یونائٹ ہوگی, متحد ہوگی. شیطان کو پتا ہے اگر تشدد سے کام نہیں چلے گا تو کیا کرتا ہے, پھر وہ سمجھوتا کر لیتا ہے, پھر وہ چرچ کے اندر آ جاتا ہے. اس عورت نے یہ کام کیا تھا. یہ جو دوسرا گروپ ہے جس کے بارے میں بات کریں گے, اس نے جو ڈاکٹرن تھی, جو اصل تعلیم تھی خدا کی, اس کو چینج نہیں کیا, اس کے ساتھ اس نے مکس کر دیا. ایگنوسٹک جو تھے اس دور کے, ان کی یہ لیڈر تھی. جو تاجر برادری تھی اس کو ان کی حمایت تھی, کیونکہ تاجر جو بزنس مین ہے میجورٹی جو ہے they will do hook and crook, جو انگلش کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, جائز اور ناجائز اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے. آج بھی جو لوگ اس کے پیروکار ہیں اس شیطان کے, وہ یہی کرتے ہیں. ہر طرح کا جادو ٹونا اور اس طرح کے مندروں پہ جانا, قبرستانوں میں جانا, اور جو سیانے جنہیں ہم کہتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں لوگ کہ دیکھو جی میرا بزنس ڈاؤن ہے, کیا کیا جائے. آپ کو بتاتا ہوں, ایک ایماندار جو ہے وہ صرف اور صرف یسوع کے قدموں میں آ کے کہتا ہے خداوند میری مدد کر. یس آمین, صرف خداوند. اور یہاں پہ اس عورت نے کیا کیا, اس نے اپنے کریکٹر کے ذریعے, اس نے اپنی جھوٹی تعلیم کے ذریعے یہ جو پاورفل طبقہ ہے اس کو بھی ساتھ ملا دیا تھا. اور ان کی جو یہ جو اسکول آف تھاٹ تھا, ان کی جو تعلیم تھی, جو طبقہ فکر تھا, پتہ کیا تھا کہ خدا, یہ ایگنوسٹکس جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ خدا جو ہے اس کا تعلق روح سے ہے. خدا روح ہے تو اس کا تعلق پھر روح سے ہے. انہوں نے اب کیا کیا, جو کرسچن ڈاکٹرن تھی اس کو مکس اپ کر دیا کہ خدا کو اس سے فکر نہیں کہ ہمارے جسم میں کیا ہو رہا ہے, ہم جسم میں رہ کے کیا گناہ کرتے ہیں. He doesn't cares about that. He cares about your spirit. لہذا آپ کی روح جو ہے وہ پاکی ہے. یہ جو زناکاری, حرام کاری, بت پرستی, جانوروں کی قربانی کا گوشت کھانا, یہ سب جسم میں ہے. آپ نے دیکھا کتنی آسانی کے ساتھ سادہ لوگوں کو ورگلا لیا جاتا ہے. میں یہاں بات کرنے لگا ہوں اور یہ سمپل سادہ بات ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے. میری کوشش یہ ہوتی ہے بائبل کے اوپر وہ کہتے ہیں پرچتی دے پہ انہیں اٹھا لیا تاکہ ہمیں سمجھ آئے. پتہ نا آپ کو پرانے وقتوں میں ہماری مائیں جو تھی وہ مٹھائی کو, ایسی چیزوں کو اوپر رکھتی تھی بچے نہ پہنچے. آج کل ایسا ہے لیکن میری کوشش سے نیچے نہیں تاکہ مجھے سمجھ سکے. آپ کو پتا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ کرسمس جو ہے کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ میں آپ کو مکس اپ تعلیم کی بتا رہا ہوں. کہاں لکھا ہے 25 دسمبر؟ ہاں 25 دسمبر کی ڈیٹ نہیں ہے. لوگوں نے جس طرح بھی کیلکولیشن کی دے came up with this date 25 دسمبر. سوال یہ نہیں کہ یسوع 25 کو پیدا ہوا 26 کو. سوال یہ ہے کہ یسوع پیدا ہوا, میری اور آپ کی نجات کے لیے وہ زمین پر آیا. اس کی سیلیبریشن ہم کرتے ہیں, اس کے جنم دن کو ہم مناتے ہیں. بہت ساری کلیسیاں ہیں مڈل ایسٹ میں, اسپیشلی جو آرتھوڈکس چرچ ہے وہ شاید 6 تاریخ کو یا کوئی اور جنوری کو یا کوئی اور ڈیٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. 25 دسمبر سے فرق نہیں پڑتا. ایک ایماندار کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ یسوع کی زمین پر گناہ گاروں کی خاطر جو آمد ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم پر رحم کیا. یہ تعلیم آج ہے. بہت سارے لوگ, I'm pretty sure آپ کو پتا ہوگا, ادھر خادم بیٹھے ہیں دے لو, بہت سارے لوگ مقدسہ مریم کنواری سے مسیح کی پیدائش کو ہی نہیں مانتے. کرسمس ٹری کیوں لگاتے ہیں؟ It's just a celebration. اس سے آپ کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے علاوہ میرے عزیزو سمپل سادہ مسالے ہیں. اس وقت جو لوگ ان مندروں میں کام کرتے تھے, جب وہ کام کرتے تھے, ہسٹری میں آپ پڑھیں تو وہ
सफेदी या संग तराशी करते थे, मुजस्मे बनाते थे या पेंट करते थे, तो वो वहीं से खाते थे। उसी मंदिर में जो कुर्बानी होती थी बुतों की, उसी से खाते थे, उसमें से खाते थे। सवाल किया गया कि क्यों ऐसा है? भाई हम यहां काम करते हैं तो यहीं पे खाएंगे। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग, मैं भी जानता हूं आप भी, वो इस तरह का बिजनेस करते हैं जो कलाम की रूह से मना है, और वो कहते हैं कि करिए जैसे बच्चे भी पाल रहे हैं। ये एक्सक्यूज है। बच्चे पालने के लिए आप खुदावन के पास आए, खुदावन खुद आपके लिए रास्ते खोलेगा। हमें सब्र होना चाहिए, इंतजार करें उसका। हम कहते हैं कि अगर रात को दुआ किए तो सुबह अलादीन की चाहत की तरह ऐसे हो जाए। हमारा खुदा जो है वो करिश्मे नहीं करता, मौजज़े करता है। हमारा खुदा मौजज़े करने वाला खुदा है। वो आपके लिए बंद दरवाजे खोलेगा। जस्ट वेट ऑन हिम, उसका इंतजार करो, वेट ऑन हिम, क्योंकि वो अपने कैलेंडर के हिसाब से काम करता है। और अगर डिले है तो उसमें भी वो हमें सिखा रहा है, हमारे अंदर सब्र की रूह जो है वो पैदा कर रहा है। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि, अब मैं खुल के बात करता, अगर कोई ये कहता है कि शराब बेचकर मैंने अपने बच्चों की परवरिश करनी है, तो मेरे भाई खुदा का कलाम इसकी इजाजत नहीं देता। गाइडलाइंस है। खुदावन आपके लिए और भी दरवाजे खोलेगा। सिर्फ यीशु पर ईमान रखें और वो आपका क्या रखेगा। वो आपसे प्यार करता है, उसको आपकी फिक्र है। बहुत सारे लोग इसी तरह की इवल सैक्रिफाइस से मेरे जीजू अपने खानदान में अपने बच्चों को पालते हैं। ये जो औरत है, ये जो ग्रुप था, इन्होंने इसको जो ओरिजिनल तालीम या जो डॉक्ट्रिन थी उसके साथ मिक्सअप कर दिया, और आम लोगों के लिए मुश्किल थी जैसे आज है इस तरह की कुर्बानियां देना और उनमें शामिल होना मेरे जीजू ठीक नहीं। हम इसमें पढ़ते हैं कि ये जो लोग थे ये बाकायदा मीटिंग भी करते थे, और बहुत सारे मसीही जो थे वो भी बिजनेस में थे इस शहर में। आज भी आप अपने देखते हैं यहाँ इस मुल्क में हमारे बहन भाई हैं, हमारा ये प्यारा खानदान है, इसका बिजनेस है, और भी बिजनेस में होंगे, शी हैज अ बिजनेस। लेकिन एक ईमानदार की जो गाइडलाइंस है बिजनेस के लिए वो डिफरेंट है एक गैर ईमानदार। और ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम चूंकि उन मीटिंग्स में जाते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए। लेट मी टेल यू गो टू स्कूल, यू गो टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, यू लिव इन अ सोसाइटी वेयर देयर इज ओपननेस, देयर आर चैलेंजेस फॉर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स एवरीवेयर। और ना सिर्फ बच्चों के लिए, हम बड़ों के लिए भी है। हमारी जो काम करने की जगह है, वी हैव चैलेंज। बट लेट मी टेल यू, never compromise. Yes. Never compromise. Yes. कल एक बंदा जुमे को आया, उसका इंटरव्यू हमने किया अपनी जॉब पर। हमारा ये मैं सिर्फ एक बात आपको बताने लगा हूं। उसकी दाढ़ी थी, and we do not let this, you can't grow beard, आधे इंच तक की इजाजत है, कंपनी की गाइडलाइन है। I don't know if he was a Christian or what. He said, hey, I'm not going to cut my beard. I gave up this job. That was his choice. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्पेशली जो बच्चे हैं, you have a lot of challenges in your institutions, but if you pray and trust in Lord, He will open doors for you. Yes. He will make a way. वो pastor वहाँ बैठे हुए हैं, you remember, वो द्वार को चर्च नहीं आ सकते थे। Yes. हमने दुआ की, उन्होंने दुआ की, and खुदा ने काम किया, and now he can be in God's house every Sunday. खुदा जो है मौजूद करता है, आज भी करता है मेरे अजीजों। We just have to trust in him. शायद भाई फैमिली के लिए चैलेंज था, उन्होंने खुदावन के आगे दुआ रखी और खुदावन ने उनकी दुआ सुनी, and they took one step and Jesus took his step and they met at the common ground. आमीन। ये होता है, अगर मैं यहाँ बैठा रहूं, इंतजार करूं कि खुदावन कोई बाहरों आके मेरा दरवाजा के मिस्टर जॉर्ज वहीद, we made you president of the United States, ऐसा नहीं होगा। मुझे उसके लिए काम करना पड़ता है, एप्लीकेशन डालनी पड़ती है प्रैक्टिकली, और फिर खुदावन अपने हिस्से का काम करता है।
मेरे अजीजों, ये जो कलीसिया थी वहां ये चैलेंज था। एक वो ग्रोह था जो ईमानदारी के साथ जो मिक्स तालीम थी उसमें शामिल ना हुए, और दूसरा वो ग्रोह था जो उसमें शामिल हो गए और उनके लिए मुश्किल हुई। जल्दी से इसको मैं रैप करता हूँ 10 मिनट में, और फिर जब हम आगे बढ़ते तो लिखा है कि मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ। 22 है, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। हमारा खुदा प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ बाप है। वो चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। वो चाहता है कि तौबा करे। इसको भी खुदा ने तौबा के लिए, रिपेंटेंस के लिए खुदा ने मौका दिया था, और उसने तौबा ना की। और फिर आगे लिखा हुआ इसी का हिस्सा है, मैं उसे बिस्तर पर डालता हूं जो उसके साथ ज़िना करते हैं, अगर उसके ऐसे कामों से तौबा ना करे तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूं, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा, और सब कलीसियों को मालूम होगा। क्या मालूम होगा? कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। यहां पर फर्जंदों की बात वही है जो उसकी तालीम पर अमल करते थे। उन्हीं को फर्जंद का है। जब मैं और आप खुदावंद की तालीम पर अमल करते हैं, बाइबल पर, तब उसके बेटे और बेटियां हैं। और जो शैतान और उसके कामों और उसके पैरोकार हैं, दे आर डेविल्स चिल्ड्रन। इसलिए कहा गया है शैतान के फर्जंद, इब्लीस के फर्जंद। यीशु बार-बार ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और फिर आगे बढ़ते हुए 24वीं आयत में लिखा हुआ है, मगर तू त्यूतीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं ना वाकिफ हो, ये कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। तुम पर और बोझ ना डालूं, ये तसल्ली के लिए था, इत्मीनान के लिए था कि मैं जल्द आऊंगा। कलीसिया जिसमें से गुजर रही थी, ये तसल्ली और इत्मीनान के लिए। गहरी बात यही है मेरे अजीजों। आपने कभी ये मुहावरा सुना है? वो एक बड़ी गहरी बात है। सुना ये जो मुहावरे अगर आपने गौर करें तो आप कलाम में कहीं ना कहीं मिलते हैं। बड़ी गहरी बात है, मतलब ये कि वहां पर जो हो रहा था उसके बारे में कहा गया कि लोग साइलेंटली, ओपनली, हर तरह से जो करप्ट थे उसमें आगे बढ़ रहे थे। और कोई डीप बातें नहीं है, यही कि वो शैतान की तरफ 100% थे, और वो कर रहे थे जो शैतान या डेविल या लूसीफर जो है उनसे करवाता था। लेकिन यीशु ने तसल्ली देते हैं कि मैं जल्द आने वाला हूं, और हमारी मर्जी आयत जो थी 26वीं, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। खुदावन हमें तसल्ली देते हैं, जैसे उसने कहा जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी दूंगा। फिर एक कलीसिया में कहा मैं तुझे सफेद पत्थर दूं। खुदा वादा करते हैं, पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट, फिर कलीसिया की जो जरूरत है, जो हालत है, उस पर बात करते, फिर खुदा मुझसे वादा करते हैं कि अगर वो मेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे तो इवार्ड या इनाम में क्या मिलेगा। और यहां पर ये जो बात लिखी गई है कि अगर हम उस के जो काम है उनके मुआफिक आखिर तक अमल करेंगे तो क्या होगा। और वो 27वीं आयत में है, कौमों पर इख्तियार दे दूंगा। ये 26वीं आयत का आखिरी वो दो अल्फाज हैं। फिर 27वीं आयत में कहते हैं और वो लोहे के आसा से ऊपर हुकूमत करेगा। इख्तियार का मतलब यही है मेरे अजीजों, खुदावंद की जो बादशाहत है उसमें लिखा है कि जो ईमानदार है, क्या लिखा है, तुम कौमों का इंसाफ कराओ। खुदावंद हमें अथॉरिटी और इख्तियार दे, वर्ड टाइप मुख्तलिफ तरह की, लेकिन मैं और आप उसकी बादशाहत में शामिल हूं। जिंदगी का ताज मेरे और आपके लिए वो हमेशा की बादशाहत है, उसमें शामिल होना, उसके साथ हमेशा तक अपनी अब्दियत जो है बसर करना है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो वो अपने लिए इब्ने आदम का टाइटल इस्तेमाल करता है शुरू में, और वहां पर खुदा इब्ने आदम का टाइटल इस्तेमाल करते हुए रहम, मोहब्बत, दुख और करम इसकी बात करता है, तरस की बात करता है। यहां पर अब वो लोहे के आसा के साथ हुकूमत की बात, अब दूसरी दफा जब वो आएगा वो एक जज की तरह, एक हाकम की तरह आएगा और इंसाफ करेगा। पहली दफा जो आया तो वह एक बड़े की तरह आया, और फिर जो वादा है यहाँ पर मेरे जीसस वो क्या है, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा
अगर हम मुकाशवा की इसी किताब के आखिरी चैप्टर में जाएं 22वें बाप में और वहां 16वीं आयत में लिखा है, मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। जब यीशु ये कहते हैं कि मैं सुबह का सितारा, तो बेसिकली यहाँ जो वादा है उसका मतलब है कि हम हमेशा के लिए उसके साथ, वही सुबह का सितारा है। वो ये कह रहा है कि तुम मेरी कुर्बत में हो। अब सवाल आया ये सब बातें करने के बाद, खुदावंद इस कलीसिया जो कि एक रोल मॉडल कलीसिया थी, उनकी सारी बातें करने के बाद क्या करता है? दरअसल वहां 2 टीम थी मेरे तीसरे। एक वो टीम थी, एंड दिस इज द लास्ट फ्यू सेकंड्स, एक वो टीम थी जिन्होंने जो करप्ट और फॉल्स टीचिंग है उससे अपने आप को पाक रखा। एजेबेल की जो तालीम थी, जो हरामकारी, जो गुनाह था, उससे अपने आप को पाक रखा, अपनी पोशाक को पाक रखा। यीशु ने कहता है यू आर माइटी। आपको पता है जब हम क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं तो क्या होता है? अक्सर डेविड भाई और दूसरे जो भी कैप्टन होते हैं, यू आर माइटी, वो कहते हैं यू आर माइटी। जो टीम है, यीशु कहता है यू आर माइटी। यीशु आपको कहता है तुम मेरी टीम में, तुम मेरी टीम में, कि तुम मेरे कलाम के मुताबिक चलते हो। तुमने एजेबेल की जो तालीम है उससे अपने आप को आलूदा नहीं किया। दूसरी टीम शैतान की लूसीफर की है मेरे से। ये नेकी और बदी की 2 गुफ्ते हैं। अब सवाल ये है कि विच टीम आर वी? खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए, और खासकर इस कलीसिया के लिए जो खुदावंदा गो, जब हम शहर के बारे में पढ़ते हैं और उनकी तादाद के बारे में, तो ये दूसरी कलीसियाओं के मुकाबले में छोटी कलीसिया थी। लेकिन खुदावंदा जिस तरह उस छोटे से करप्ट ग्रुप ने, एजेबेल और उसके ग्रुप ने कलीसिया के अंदर फॉल्स टीचिंग फैला दी, खुदावंदा आज भी बिल्कुल उसी तरह मुख्तलिफ जगह पर खुदावंद शैतान जो है पूरी कुव्वत के साथ तेरे लोगों को तबाह कर रहा है। बहुत जगहों पर खुदावंद इसी तरह शैतान करता है, इसी तरह वो अबलीस करता है। तू हमें तौफीक दे कि हम अपनी रूहानी आंखें खुली रखें, ताकि खुदावंद हम उसको और जो भी खुदावंद उस ग्रुप में लोग हैं उनको पहचान सके। आए खुदावंद, तू जिसने हमें अपनी टीम में चुना है, तेरे आगे मिन्नत करते हैं, हमें तौफीक दे कि हम वफादारी के साथ खुदावंद तेरे साथ चलते रहे, ताकि जो वादे तूने किए हैं दूसरे मजमूनों में, दूसरी कलीसियाओं के साथ जब तूने बात की, और खासकर इस कलीसिया के साथ, हम खुदावंद वादों के हकदार हैं, क्योंकि हम तुझ पर ईमान रखते हैं और तुझसे दुआ करते हैं कि हमें इस वफादारी में चलने के लिए हमारी मदद कर। ऐ पाक रूह हमारी मदद कर, यीशु के नाम में आमीन। खुदा उनका शुक्र उसके ज़िंदा कलाम के लिए और उसके मुकाशफा के लिए, और ख़ास तौर पे खुदा उनके खादम के लिए। आइए हम ज़ोरदार खुदा के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदा का ज़िंदा कलाम जो ला तब्दील है वो आज भी हमारे सामने मौजूद है, और हम उससे सीखते हैं, और खुदा का पाक रूह हमारे साथ होता है। आइए हम आगे बढ़ते हुए हम हदिये के लिए हमारे साथ सिस्टर हैं, वो गीत गाएंगी, और दरख्वास्त करूँगा कि खुदावंद के हजूर में जब हम आते हैं तो दिल खोल कर हदिया दें। खुदावंद आपको बहुत सी बरकत से मालामाल करता है। तो अभी वक्त हुआ है कि हम हदिया उठाएंगे।
गीत नंबर 279, पेज 352. गीत नंबर 279. हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। आँखों से भरी पूरी होके तेरे लिए जीऊंगा। आँखों से भरी पूरी होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया। गुनाहों को मिटा के पाप करके सजा भी दे दी है। गुनाहों को मिटा के पाप करके सजा भी दे दी है। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा जुबान तू है। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा जुबान तू है। तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा, मेरा ईमान तू है। तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा, मेरा ईमान तू है। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए। जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं यीशु के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं यीशु के लिए। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
अपनी नज़रों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर इस हदिया के लिए जो उसके लोगों ने खुदावंद की बादशाही की वसत के लिए दिया है इसके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि इंसान के लिए ये रवा नहीं कि वो रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह करे। जैसा कि हम जानते हैं कि खुदावंद हमारे जायज़ कामों से कमाई हुई हदिये को, फंड्स को खुदावंद कबूल करता है, चाहे वो थोड़ा ही। तो खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे लोगों ने अपने जायज़ कामों में से जो उन्होंने कमाया और तेरे हजूर वो इसे हदिया के तौर पर लेकर आए हैं। इस हदिया को बखूर की कुर्बानी की तरह खुदावंद कबूल फरमा, और खुदावंद जिन हाथों ने तेरी बादशाही की वसत के लिए हाथ बटाया है उन हाथों को मजबूत कर, उनके घरानों पर रहम और करम फरमा, उनके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती फरमा, क्योंकि तूने कहा है कि जब तुम मेरे घर में अपनी हदिये और नजराने लेकर आओगे तो उसके एवज मैं बीमारी को, लाचारी को और हर तरह की आफत को रोक दूंगा और उसे झिड़क दूंगा ताकि वो तुम्हारे घरानों के करीब ना आए। इसके लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू इस हदिया के एवज अपने लोगों के घरानों से हर तरह की सख्तियों को, हर तरह की बीमारियों को, हर तरह की लाचारियों को और हर तरह की बेबरकती को दूर फरमाता है। तेरा शुक्र करते हैं इसके लिए। ये दुआ और दरख्वास्त मांगते हैं मसीह यीशु के पाक और कदूस नाम के वसीला से, आमीन। हम गीत की सूरत में हम खुदावंद की जो सिखाई हुई दुआ है हम गीत की सूरत में खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। जैसे बोलिए हमें लीड करें। ये दुआ जो है एक बुक में गीत नंबर 48 और पेज 156 है, वहाँ पे ये गीत लिखा हुआ है। ये हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहताए है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहताए जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती, वैसे तेरी मर्जी दुनिया में पूरी हो, वैसे ही तेरी मर्जी दुनिया में पूरी हो, है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहताए जिसका अपने कसूरवारों को माफ करते हैं वो हमारे कसूर हमें माफ करें, हमें आजमाइश में न डालो, हमेशा के लिए आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
पाक रूह की रफाकत और शराफत इस कलीसिया के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।